Hello students. Yesterday we studied, or in the last video we studied about molecular mass. This molecular mass is the algebraic sum of the atomic masses of all the elements which will constitute the molecule. For example, CO2 is there. CO2 है तो CO2 कैसे बना है? It is the by combination of carbon and oxygen. So one carbon is equal to 12U and one oxygen is 16U. So वैसे दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो हमें दो लेना है. So we have to multiply by 2. So 2 oxygen plus 1 carbon. This will be 12 plus 16 2 is 32. 32 plus 12 is 44. तो ऐसे हमें किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. जैसे वाटर का 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मासेस ऑफ ऑक्सीजन. इफ दे आर हैविंग n number of, then we have to multiply by that number. For example, 2 hydrogens are 2, so 2 we have to introduce for along with hydrogen, atomic mass of hydrogen. मतलब एक हाइड्रोजन उसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास 1 है, वैसे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ऑक्सीजन इज देयर, सो 1 ऑक्सीजन हैविंग एवरेज एटॉमिक मास 16. 2 plus 16 is equal to 18U. Then we have C6H5Cl. So same thing we have to do for H2SO4 also. We have yesterday we studied this, but I am revising because we have the numericals based on this. So whenever numericals will be there, they will give you the average atomic weight. For example, H2SO4 is there. If they ask to find out molecular mass of H2SO4, they will give you the average atomic mass of hydrogen. In the bracket they will give hydrogen is equal to 1, sulfur is equal to 32, oxygen is equal to 16. The rest of the things you have to do, that you have to add all these things according to their number. 2 hydrogens are there, you will multiply 2 into 1 plus sulfur is 1, so you will take sulfur as it is 32 plus 4 oxygens are there, you have to multiply 4 into 16 and then you have to do the operations, that is multiplication and addition, and after doing all these things you will get 98U. So molecular mass of H2SO4 is 98U. Understood? Next is problem number 1.3. So you have to write down these problems in your notebook. I told you to make 100 pages separate notebook for chemistry. Whatever instruction I will give you, during the video I will give you. Write down these in notebook. So you have to write down. वैसे डेफिनेशंस या फिर थोड़े से डेरिवेशंस रहेंगे तो वो बोलूँगी, और ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको लिखना है. Here, find the mass of one molecule of oxygen, that is O2, in AMU unified mass and in grams. हमें कैसे कैसे निकालना है, AMU में लिखना है और ग्राम्स में लिखना है. So molecular mass of O2 is equal to 2 multiplied by 16U. हमें पता है, अभी जैसे हमने ऊपर स्टडी किया है वैसे ही है. मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना आएगा, 2 into 16, बिकॉज 1 ऑक्सीजन इज 16. सो दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32U. ये जो आंसर आता है अल्जेब्रिक सम करने के बाद, तो वो U में आता है. और अगर हमें ग्राम में चाहिए तो जैसे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, कार्बन को डिवाइड करके करते हैं ना, वो 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻²4 ग्राम. दिस वैल्यू विल गिव अस द कन्वर्जन ऑफ
or weight of substance or molecules in gram. So 1 molecule of oxygen, this is equal to, इस U को हमें ग्राम में करना है तो हमें ग्राम की वैल्यू से 32 को मल्टीप्लाई करना है. सो 32 मल्टीप्लाई बाय 1.66056 into 10⁻⁻24 gram. After multiplication, we will get 53.1379 into 10⁻⁻24 gram. Remember, you have to write the proper sign. यहाँ पे 10⁻⁻ है तो ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में हम भूल गए. नो, you have to remember it is a minus, और you have to put the symbol or unit, that is gram or U, जो भी है वो लिखना है. Understood this? Molecular formula also we studied yesterday. So one or two numericals are there that we are going to study. Find the formula mass of NaCl, कॉपर नाइट्रेट. यहाँ पे देखो NaCl का फॉर्मूला उन्होंने दिया ही है NaCl, तो ब्रैकेट में हमें दे देंगे वैल्यू. सोडियम कितना है, इट इज़ 23, और क्लोरीन जो है वो 35.5 है. कॉपर इज 63.5, देन नाइट्रोजन is 14, oxygen is 16. This much information they will give you. So rest of the things you have to do. क्या करना है फिर आपको आगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl. तो हमें पहले NaCl का देख रहे हैं. तो देखो सोडियम की वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास कितना है उसका, इट इज़ 23, और क्लोरीन 35.5. सो डू द एडिशन. सिंपल न्यूमेरिकल्स देखो ऐसे एक एक मार्क्स के लिए आते. इज इट ईजी? येस और नो? येस, इट इज़ ईजी. तो आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, आपको पसंद करते हो केमिस्ट्री को, यू थिंक दैट आई एम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, देन सी द थिंग्स हाउ द changes will take place. You will study the subject every day, you will listen the videos carefully, you will do the assignment properly because you love chemistry, because chemistry is everywhere. Okay, you are good students, you will do the things every day properly. So एडिशन करना है आपको. 23 + 35.5, आपको आंसर मिलेगा 58.5. U, व्हाट इज U? यूनिफाइड मास और AMU, एटॉमिक मास यूनिट. U भी लिखोगे तो चलेगा, बस U ही लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज CuNO3 टॉइज. फॉर्मूला इज गिवन ऑलरेडी, सो you will write average atomic mass of copper plus 2 into average atomic mass of nitrogen plus average atomic mass of 3 oxygen. उन्होंने सब कैसे ब्रैकेट में लिखा है. Why it is multiply with 2? Because NO3 is twice. N 2 बार है, O3 जो है वो भी 2 बार है, इसीलिए 2 को बाहर ही मल्टीप्लाई किया है. सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना है, इट इज़ 14, ऑक्सीजन इज 16, but there are 3 oxygens, so 3 multiplied by 6. So all this, after multiplying all these things, we'll get the answer 187.5 U. 187.5 U आंसर मिलता है. तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको लिखने हैं नोटबुक में, अच्छे से लिखने हैं, और ऐसे ही आपको देखो नीचे भी दिया है एक, आप ट्राई करो. कैल्शियम सल्फेट, देखो आई टोल्ड यू नो, सो दे विल गिव इन दिस फॉर्म. Calcium is 40.1, sulfur is 32.1, oxygen is 16. So using this data you will solve calcium sulfate. Okay, now then we'll study mole concept and molar mass. This is very important concept. Mole concept. Now mole means, now let me tell you, if you want to buy
any fruits in dozen. So we say them, give me 1 dozen of banana. So what is the meaning of dozen? It is a simply 12 quantities. Agree? 12 थिंग्स. ऐसे नहीं कि हमेशा बनाना ही हो, नहीं, आप बैंगल्स भी ले सकते हैं, 1 डजन बैंगल्स. मैं लेती हूँ 1 डजन बैंगल्स. सो हाउ मच क्वांटिटी आई विल गेट? 12. क्वांटिटी कितना मिलता है मुझे? 12 मिलता है. सो डजन मीन्स व्हाट? इट इज़ अ 12. सो द मोल जो है, मोल, ये मोल क्या है? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले. अभी expressing large count of object is made easy by using quantitative objectives such as dozen, gross. You know that even a small amount of any substance contain very large number of atoms or molecules. We use a quantitative objective mole to express the large number of submicroscopic entities like atoms, ions, electrons, etc. present in the substance. Listen, क्या होता है, हमेशा हम बड़ा सोचेंगे तो बहुत वेट उसका ज़्यादा होता है. सपोज टन, क्विंटल, हाँ, ये होता है. सम थिंग्स इवन वी आर गेटिंग इन द ग्राम ऑल्सो. ग्राम से भी बहुत कम रहते हैं. देखो, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉस्ट नाउ डेज इट इज़ 5000. 1 ग्राम. 10 ग्राम ऑफ गोल्ड में कॉस्ट अराउंड 50,000. जैसे आई डोंट नो टुडेज रेट, बट अभी का जो मैं रेट चल रहा है वो ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ. 50,000 होगा या फिर 50 to 60,000 के बीच में होगा. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम. ओके, तो हम सब्जी तो 10 ग्राम में नहीं लेते. सो वी मे टेक इन केजी. बट गोल्ड जो है हम 1 ग्राम में ले सकते हैं. इवन 1 ग्राम ऑल्सो वी हैव टू कॉस्ट 5 to 6,000. नाउ ग्राम इज ऑल्सो बिगर वन. उससे भी बहुत कम हो सकते हैं. जैसे हमारे मेडिसिन्स रहते हैं, मेडिसिन्स के ऊपर भी देखोगे ना आप, तो उसका mg लिखा रहता है. दिस मच mg 1 टैबलेट इज हैविंग दिस मच mg रहते, तो उतना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो स्मॉल थिंग्स आर ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट थिंग्स. वी यूज क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट मोल. हम मोल का अभी इस्तेमाल करने वाले. जैसे हमें अभी तक पता है ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन या फिर मिलीग्राम. मिलीग्राम इज व्हाट? ग्राम से भी बहुत छोटा होता है. 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. ग्राम से भी आप छोटा सा भी सोना लेने जाएंगे तो वो मिलीग्राम में रहेगा. सो उसके लिए भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं आपको. सो या फिर टैबलेट जो होते हैं वो भी मिलीग्राम में होते हैं. आप थोड़ा रीड करोगे तो भी आपको कंटेंट समझ में आएगा कि वो कितने मिलीग्राम में है. सो द मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, ये सारे क्वांटिटीज़ कैसे है? बड़े भी है, ये छोटे भी है. सो वी आर एक्सप्रेसिंग द वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन. बट द क्वांटिटी ऑब्जेक्ट जो भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं? तो मोल में करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो व्हाट इज मोल? दैट मोल इज लाइक द एंटिटीज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. देखो, अभी मैं एक बार डेफिनेशन बताती हूँ, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करती हूँ. लिसन, डेफिनेशन ऑफ मोल. 1 mole of is the amount of a substance that contain many entities. Entities मतलब content, सब factors or particles as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. देखो, ये मोल जो है ये क्या है? इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? जैसे हम डजन बोलते हैं तो यू कंपेयर दिस विथ डजन. ओके, यू में से डजन ऑफ बनाना. बनाना इज द एंटिटीज.
आर यू गेटिंग? बट डजन क्या है? 12. सो मोल क्या है? इट इज द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन एक जो सब्सटेंस है, जैसे अभी हम एक सब्सटेंस लेंगे कि देखो NaCl है, सपोज NaCl है, तो NaCl 1 मोल ऑफ NaCl है, तो NaCl मतलब क्या है उसमें 1 मोल? दैट मीन्स इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. मतलब हम ये किससे कंपेयर कर रहे हैं अभी? कार्बन 12 के आइसोटोप से कंपेयर कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टैंडर्ड वन विच वी यूज टू चूज फॉर स्टैंडर्ड टू मेजरिंग एटॉमिक मासेस और एवरेज एटॉमिक मास. तो यहाँ पे भी मोल के लिए भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि जैसे कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड समझा है, तो कार्बन 12 में एक कार्बन 12 देखो कितना एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इसमें कितने आयन्स है या फिर कितने एटम्स है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कंटेंट है उसे बोलते हैं मोल. आर यू गेटिंग? मतलब देखो, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम दैट इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर इज. तो कार्बन 12 का मास कितना है? देखो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. ये है कार्बन 12 का मास. समझ में आया आपको? कार्बन 12 का मास कितना है? इतना है. हमें किससे कंपेयर करना है? कार्बन 12 से ही कंपेयर करना है, इसीलिए ये लिया है. सो नेक्स्ट स्टेप, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12. कार्बन एटम के मास कितने हैं? 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स रहेंगे? 12 रहेंगे. वाई 12? बिकॉज इट इज इट्स एटॉमिक मास. नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. अभी कार्बन 12 ये 1 मोल हो गया, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कितने आयन्स रहेंगे या फिर कितने पार्टिकल्स रहेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 12 डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास. जैसे 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे. ये डिवीजन का आंसर आता है 6.022137 इंटू 10⁻23. ये माइनस नीचे था ना, 10 पावर देखो 10⁻⁻23. इट वॉज इन द डिनोमिनेटर, नाउ इट विल गो इन द न्यूमरेटर, सो इट्स साइन विल गेट चेंज और रिवर्स, so it becomes 23 plus 23. तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, उसमें ए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयन्स होते हैं. तो देखो आपको अगर कहा गया how much electrons are there in 1 mole, how many atoms are there in 1 mole, how many molecules or ions are there in 1 mole of substance, तो इन सब का आंसर एक ही है. इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल. कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल एटम्स पर मोल. तो सबका आंसर एक ही है. जैसे मैंने कहा था कि डजन ऑफ फ्रूट, अ डजन ऑफ फ्रूट मीन्स इट इज़ अ 12 क्वांटिटी. नाउ हियर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मीन्स हाउ मेनी एटम्स और हाउ मेनी आयन्स और हाउ मेनी पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू
6.022 into 10⁻23 और दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। इसे क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। आगे है हमें ये, सो इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर भी बोलोगे आप तो भी चलेगा। इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मीन्स when we say a dozen of fruits means dozen is equal to 12. So same thing here, 1 mole of substance is equal to 6.022 into 10⁻23 or Avogadro number. So note that the name of the unit is mole and the symbol is MOL. वर्ड में कैसे लिखेंगे हम? MOLE मोल, और यूनिट लिखते समय MOL भी लिखेंगे, वो भी मोल ही है बट इट इज़ अ यूनिट। जैसे हम मास का यूनिट लिखते हैं ग्राम या फिर kg, सो kg इज़ द यूनिट एंड मास इज़ द डेफिनेशंस जिसे बोलते हैं वैसे। देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर 6.022 into 10⁻23 इज नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट इन द ऑनर ऑफ एमेंडो एवोगैड्रो। तो ये एवोगैड्रो उन्होंने डिस्कवर किया है, इसीलिए इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। इन एसआई सिस्टम मोल symbol MOL was introduced as 7th base quantity for the amount of substance। ये 7th नंबर पे है, हाँ, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। देखो आपको जैसे पता है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है? थोड़ा सा भी आप कुछ लेते हो सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस है, NaCl में कितने पार्टिकल्स है, इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। NaCl में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, NaCl क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यू आर फेमिलियर विद NaCl, इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट, वी आर ईटिंग टेबल सॉल्ट, ओके। सो मैंने कहा अगर 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ NaCl में will have how much particles, so all that things are equal to Avogadro's number. Are you getting? Avogadro number क्या है? It is the number of ions, electrons, particles or molecules present in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope. तो ये कितने, कैसे, स्टैंडर्ड क्या है, हम किससे कंपेयर करेंगे? तो कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? उसका मास लेंगे डिवाइड बाय इट्स मोलार मास और द ग्राम में जो वजन है उसका वो लेंगे, वो डिवाइड करने के बाद हमें ये नंबर मिला है, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। अंडरस्टूड? सो दिस एवोगैड्रो नंबर इज़ नथिंग बट इट इज़ द 1 मोल वैल्यू। 1 mole of any substance will always contain number of electrons, number of ions, number of particles is equal to 6.022 into 10⁻23. I hope you understood. This is very important. मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आपको अराउंड 50% केमिस्ट्री यू अंडरस्टूड। हमें जाके आगे जाके यही स्टडी करना है, इसके ऊपर ही है, लेकिन हम बार बार नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ 1 मोल। Understood? The mole is the quantity that is Avogadro number। तो Avogadro number क्या बताता है? उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें, उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है, उतने नंबर के आयन्स है, या फिर वो उतने नंबर के पार्टिकल्स है, जो भी है। ये चारों आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जैसे वजन है तो हम जो वेट है तो हम मास में ही मेजर करते हैं, बट यहाँ पे ये सारे कंटेंट्स जो है वो सारे ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। सो नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेंट्स। देखो अभी आप एग्जांपल देखो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट्स हाउ मेनी एटम्स, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपको 6.022 इतना ही लिखना है, आगे का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इंटू 10⁻23 इज मस्ट, दीज मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
अभी देखो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन हाउ मेनी मोल्स, एवोगाड्रो नंबर. 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स, एवोगाड्रो नंबर, formula units of NaCl. I hope you understood this. 1 मोल. देखो नेक्स्ट भी है और एग्जाम्पल. क्या भी यहाँ पे ये समझ के लिया है, ये समझ के ही हम आगे बढ़ रहे हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी मोलार मास. Now molar mass is equal to the mass of 1 mole of the substance. यहाँ पे फिर से अभी मोल आया क्योंकि अभी आपको मोल पता है. एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलार मास. तो मोलार मास भी सिंपल है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था वैसे. So it is simple. Molar mass of the any substance in gram is numerically equal to atomic mass of that element in U. Molar mass simply क्या है? अगर suppose हाइड्रोजन है, so हाइड्रोजन atomic mass is 1, so its molar mass is also 1. कार्बन atomic mass is 12, molar mass is also 12. सिंगल क्वांटिटी कंटेंट है तो वो सिंगल ही रहेगा. अगर मॉलिक्यूल में है जैसे इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब आते हैं, सेम ही है ये. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन दिया है यहाँ पे. कार्बन देखो 12 है, मोलर मास इज ऑल्सो 12. ऑक्सीजन 16, इट इज़ ऑल्सो 16. सिमिलरली मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस existing as polyatomic molecules in gram, it is numerically equal to its molecular mass or formula mass. तो चाहे आप molecular mass लिखो, formula mass लिखो या molar mass लिखो, सबका मीनिंग एक ही है. उसमें क्या करना है आपको, जो एटॉमिक मास है वही उसका मोलर मास है, वही उसका मोलिकुलर मास है, वही उसका फॉर्मूला मास है. अगर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल वाटर H2O, तो उसका आपको एडिशन करना है बस. देखो यहाँ नीचे दिया है पॉली एटॉमिक है. अगर O2 इज देयर, O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है. 1 ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन आर 32. मॉलिकुलर फार्मूला भी वही है, मोलर फार्मूला भी वही है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. जो वर्ड लिखा है वही लिखो, लेकिन करना क्या है, सबका अलजेब्रिक सम ही लेना है. मॉलिकुलर फार्मूला हो, मोलर मास हो या फिर फार्मूला मास, ऑल दिस 3 आर इक्वल. वाटर का दिखाया देखो 18, NaCl 55, 58, 58.5, 58.5. सो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, देखो अभी एटम्स, मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स, तो 6 एवोगाड्रो नंबर इंटू मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम. एक एग्जाम्पल दिया है कि 16 कैसे आता है ऑक्सीजन का. देखो एवोगाड्रो नंबर है मल्टीप्लाई बाय उसका खुद का मोलर मास एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाई विथ ग्राम वेट, जो हमने शुरू में स्टडी किया है ना, याद है ना आपको. इट दिस क्वांटिटी 1.66 कहाँ मिली है हमें, इट इज़ द वेट ऑफ 1 AMU. सो इफ़ यू डू ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट द वैल्यू 16. तो हम इसीलिए हम ऑक्सीजन का 16 लेते हैं. जो भी हम ले रहे, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, ऑल द थिंग्स वी आर गेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स विथ एवोगाड्रो नंबर एंड चार्ज 1 AMU की जो वैल्यू है, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये हमें मिले हैं. ओके, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल, दैट इज 1.5. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of molecules of urea present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक एडिशन आया है, तो वो आपको फॉर्मूला लिख के लेना है. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपको लिख के लोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे फॉर्मूले में है. Number of moles is denoted with small n. It is equal to, it is the ratio of
मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, या फिर केजी ग्राम में ही लेते हैं हम, डिवाइड बाय इट्स मोलार मास इन ग्राम पर मोल। क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल. So here we will get number of moles. तो यूरिया है, यूरिया लिखा है बट यू मस्ट नो द फॉर्मूला, तो दे देंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं. NH2CONH2 दे आर गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो कैसे लिखेंगे हम यूरिया? तो ऐसे लिखते हैं. तो देखो अभी वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास, मोलर मास क्या होता है? इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल. तो सबका हमें एडिशन करना है एटॉमिक मास का. एक देखो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है. सो कलेक्टिवली वी विल फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 average atomic mass of hydrogen plus 1 carbon and 1 oxygen. So we will write 2 multiply by 14 plus 1 multiply by 12 plus 4 multiply by 1 into और plus oxygen का है ना 16. So if you do all these things you will get 60. यूरिया का मोलर मास 60 आता है. तो देखो हमें अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास ऑफ यूरिया इन ग्राम, जो हमें दिया हुआ है. देखो कितना है मास ऑफ यूरिया? इट इज़ 5.6 ग्राम दिया है, और मोलर मास जो हमने अभी निकाला है वो है 60. सो जस्ट डिवाइडिंग 5.6 डिवाइड बाय 60 यू विल गेट द आंसर 0.0933 मोल. ये हो गया. आफ्टर दैट वी हैव दे आस्क्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स. अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अगेन वन फॉर्मूला इज देयर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. जो हमारा अभी आंसर आया है उसको हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.0933 इंटू 6.022 एवोगैड्रो नंबर है तो 10⁻23 आएंगे. सो दिस मल्टीप्लिकेशन आंसर इज 0.5618. दिस इज इक्वल टू 5.618 इंटू 10⁻22. ओके, सो आंसर इज नंबर ऑफ मोल्स 0.0933, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया 5.618 इंटू 10⁻22 molecules. अंडरस्टूड? हियर वी विल रिक्वायर, ये देखो अभी 5.6 डिवाइड बाई 60, ये जो है ये आपको टेबल्स तो नहीं आते 60 का, या फिर 5.6 को आप डिवाइड नहीं कर सकते इजीली. सो टू रिड्यूस दिस वी हैव वन कैलकुलेशन, मीन्स वन मेथड इज देयर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज लॉग टेबल. हाँ, लॉग टेबल में वैल्यूज़ होती है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपको, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू बाय अ लॉग टेबल, और आपके अगर आपने टेक्स्ट बुक लिया है या फिर कुछ नोट्स लिए हैं तो उसके पीछे भी लॉग टेबल होता है. देखो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मैथ्स में. तो जस्ट सी है क्या, देखो आप, जैसे मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तो आपको वो सब चेक करना है. ओके, सो आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लॉग टेबल, हाउ टू यूज log table. So be ready with the log table if you are having. If you are not having, then also I will teach you. Okay, so this numerical you will write down in your notebook and solve it.